So today's video we are going to cover what is controller in Kafka. Kafka controller आपने पढ़ा होगा MVC में. That's different. इस पर MVC में जो कंट्रोलर पढ़ते थे वो अलग होता है. हम लोग काफका में कंट्रोलर पढ़ेंगे. अब काफका में कंट्रोलर क्या होता है? In Apache Kafka, the controller is a critical component of Kafka broker cluster. The controller is responsible for managing the life cycle of partitions and replicas, redirection and handling administrative tasks. जो भी administrative tasks होते हैं वो यहाँ पर कंट्रोलर हैंडल करता है. ये मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में काम नहीं करता है. ये बाकी जो स्पार्क काम करता है उस तरह से ये काम नहीं करता है. यहाँ पे कंट्रोलर होता है. The controller ensures that Kafka cluster remains in a consistent and a stable state. Here are some key responsibilities of Kafka controller. कुछ एक होता है लीडर इलेक्शन. बात करूं लीडर इलेक्शन के बारे में. The controller is responsible for electing a leader for each partition. It monitors the health of broker nodes and initiates leader elections when needed. Partition reassignment. The controller manages the reassignment of partitions when there are changes in the broker set, example broker addition or removal. It ensures that partitions are evenly distributed across the available brokers. Partition creation and deletion. The controller handles the creation and deletion of partition based on topic configuration. It ensures that partitions replicas are created on multiple brokers for fault tolerant. Controller failover. The controller itself is a distributed component that runs on one of the Kafka brokers. ठीक है. ब्रोकर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ये सब ऑलरेडी मैंने कवर किया है पिछले वाले वीडियोस में. तो सीरीज बाय आपको काफका की सीरीज फॉलो करनी है तो एक एक बार काफका की सीरीज फॉलो करो. और काफका अपाचे काफका इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन डाउनलोड इट. सेटअप कैसे करते हैं सब पता है. पेड वर्जन ऑफ काफका भी आते हैं बट वो अदर प्रोवाइडर्स करते हैं. वो तब आपको करना चाहिए अगर आप कोई इंडस्ट्री में, आपको इंडस्ट्री है, आपको प्रोजेक्ट्स हैं, उस केस में चाहो तो ले सकते हो. और उसमें क्या होता है ना, कुछ गड़बड़ हो गया, कोई भी दिक्कत हो रही तो आपको वहां पे आप सपोर्ट कर सकते हो. यहाँ पे क्या ना कम्युनिटी सपोर्ट है. यहाँ पे डायरेक्ट 1-to-1 सपोर्ट नहीं है अपाचे काफका. तो बहुत लोग अपाचे काफका डायरेक्टली यूज करने में थोड़ा सा बोलते हैं नहीं करेंगे क्योंकि कुछ दिक्कत होगी, नहीं कर पाएंगे. पर आपके पास अगर रिसोर्सेज ऐसे हैं जो आपको सही से कर सकते हैं, गड़बड़ वाले देख सकते हैं, तो आई वुड प्रेफर go with Apache Kafka. Cluster metadata management. The controller maintains the metadata about the Kafka cluster, including information about brokers, partitions and replica. अब topic configuration changes क्या होते हैं? The controller handles changes to topic configuration such as the number of partitions and replication factor. Number of partitions क्या है, कितने partitions आपने create किए वहां पे. Replication factor क्या है, मतलब कितनी बार मैं उसको क्लोन करूंगा, डेटा को रखूंगा ताकि मेरे को डेटा डिलीट गड़बड़ से डिलीट हो गया, हट गया, नहीं मिल रहा है तो दूसरी जगह से मैं देख सकता हूँ. सीरियसली वो चीज आपको यहाँ पे मेंशन करना. हम लोग यहाँ पे वन एप्लीकेशन रख रहे हैं क्योंकि यार हमें डमी डेटा के साथ खेल रहे हैं. वी जस्ट डेमोइंग कैसे करते हैं. तो रियल लाइफ सिनेरियो में बोल सकते हैं आप एप्लीकेशन करें, करना ही पड़ेगा आपको. कोई भी डाउन हो सकता है. सीरियसली कंट्रोलर इलेक्शन. The controller is selected among the Kafka brokers and the election process ensures that only one broker acts as a controller at a time. The controller election is based on the combination of broker IDs and epoch numbers. The broker with the highest combination is selected as the controller. अब controller internals क्या होते हैं, ठीक है. Internally the controller relies on Jugiper. Jugiper पर rely करता है, इसलिए हम लोग Jugiper पहले स्टार्ट करते हैं. For distributed coordination, however, starting from Apache version 2.800, efforts have been made to move away from Jugiper for certain functionalities, and the controller is expected to become fully self-contained in the future. ठीक है, fully self-contained in the future. तो अभी हम लोग नया वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो जुगीपर पे हाँ थोड़ा बहुत डिपेंड करते हैं. जुगीपर के बिना मैं काम नहीं कर पाऊंगा. जगह सर्वर मुझे स्टार्ट करना ही पड़ेगा, इसमें नहीं चलेगा. ठीक है, एक तो चीज है. ठीक है, मैंने यहाँ पे नया वर्जन में 3.6.0 अभी करंट वर्जन है. अभी यहाँ पे दिसंबर चल रहा है 2023 का, तो वहां पे 3.6.0 लेटेस्ट वर्जन है, वही हम लोग कवर कर रहे हैं. ठीक है, जब आप बाद में देख रहे होंगे हो सकता है नया वर्जन आ गया हो, तो उस केस में आप चेक कर सकते हो. मैं भी एक नया वर्जन, अपडेटेड वर्जन लेके आऊंगा जब नया वर्जन आएगा. ठीक है. एग्जाम्पल कॉन्फ़िगरेशन इन द सर्वर प्रॉपर्टीज फाइल हम लोग अभी चेंज भी किए थे, कुछ नए कॉपी भी क्लोन करके किए थे. सर्वर प्रॉपर्टीज पर 1 2 इस तरह क्यों किए थे. वी अरे यार मूव स्लिप हो रहा है. फॉर मल्टी-नोड क्लस्टर वी क्रिएटेड दैट, तो उस पे किए थे वो पुराने वीडियोस में. पुराने एक दो पिछला वीडियो देख लेना, वहां पे होगा. ठीक है. Third properties file of each Kafka broker, you will find a configuration parameter for Kafka controller. Controller ID, the unique ID of the broker that is acting as a controller. Important consideration. ठीक है.
The stability and proper functioning of the controller are crucial for the health of the Kafka cluster. Ensure that Zookeeper, if used, is running and properly configured. ठीक है, Zookeeper को रन करना है, तो मैंने तो रन करके दिखाया था, JK सर्वर स्टार्ट कर था. In production, it is recommended to have an odd number of brokers to avoid split votes during controller election. ये चीज करनी पड़ेगी. Understanding the role of controller is important for managing and troubleshooting of a cluster effectively, efficiently और effectively. अब लीडर्स वर्सेस फॉलोअर्स पार्टीशन क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर वीडियो को निकल जाते हैं. ये वाली थ्योरी वाला वीडियो मैंने बना के रखा था कि आप थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हो. इंटरव्यू में अगर बंदा पूछ रहा है आपसे तो आपको ये चीजें याद होनी पड़ेगी, इंटरव्यू से हटा होना चाहिए, ये सारा डेफिनेशन समझना पड़ेगा कौन क्या कर रहा है, उस हिसाब से फिर आप फ्रेम करके आप इंटरव्यू में बता सकते हैं. लीडर वर्सेस फॉलोअर पार्टीशन क्या होता है. इन फास्ट आपका पार्टीशंस आर बेसिक यूनिट ऑफ पैरेललिज्म एंड स्केलेबिलिटी. पैरेललिज्म मतलब कि एक साथ बहुत अच्छे काम चल रहे हैं. जैसे सिंपल एग्जांपल लूं, अगर मैं अपना रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लूं, नॉट काफा, मैं कुछ काम कर रहा हूँ लैपटॉप में, साथ में मैं सब्जी लेके बैठा हूँ, सब्जी काट रहा हूँ. ठीक है, वर्क फ्रॉम होम में जनरली ऐसा होता था पहले, अभी बहुत वर्क फ्रॉम होम नहीं हो रहा है, तो उस केस में वो दैट्स कॉल्ड अ पैरेललिज्म. दोनों काम एक साथ कर रहा हूँ, मल्टीटास्किंग. सीरियसली यही है ना, यही है मेरे ख्याल से पैरेललिज्म, मतलब पैरेलली टास्क चल रहे हैं. स्केलेबिलिटी क्या होता है, मेरे काम ज्यादा बढ़ गया, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मेरे ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए काम करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, मेरे लैपटॉप में 8 GB रैम है, सॉरी 16 GB रैम है, और मुझे जरूरत है अभी इस काम के लिए 20 GB, मेरे पास 16 GB रैम है, तो मैं 4 GB रैम भाड़े पे ले लूंगा. वो होता है स्केलेबिलिटी. और जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं वापस कर दूंगा 4 GB रैम. इस तरह से स्केलेबल हो जाएगा मेरी चीजें. Each partition of a topic is hosted on a specific Kafka broker. Within each partition, there is a concept of a leader and a follower. अब leader और follower क्या होता है बताता हूँ. Leader partition is the primary replica for a given partition. Leader, सब बंदा leader बनना चाहता है, पर बंदा कोई एक ही है. ठीक है. All reads and writes for that partition go through that leader. Leader is responsible for handling client requests such as producing and consuming messages. The leader maintains the INSIC replicas ISRs list, which includes replicas that are caught up with the reader's log. Followers partition क्या होता है? Followers are replicas that replicate the reader's log but not handle client request directly. Followers replicate message from the reader to stay in sync. In case of reader failure, one of the follower can be promoted to become the new reader. समझ गए हो ना? The followers are part of the INSIC replicas list, indicating that they are caught up with the reader's log. अब replication and fault tolerance क्या होता है? Replication factor. Kafka allows you to configure a replication factor for each topic. The replication factor defines the number of copies, including the leader of each partition across different books. The replication factor of a 3, for example, means that each partition will have a leader and 2 followers. Fault tolerance. The leader-follower replication model provides fault tolerance. If a broker hosting a leader partition fails, one of the follower can be elected as a new leader. ठीक है, समझ गए ना? This ensures that Kafka cluster remains available and durable even if some brokers go offline. अब ISR क्या होता है? INSIC replicas. The ISR is a set of replicas, including the reader, that are in sync with the reader's log. When a broker is slow or experiences a temporary failure, it might be removed from the ISR until it catches up with the reader. The ISR ensures that only replicas that are reasonably up to date can be elected as the leader. समझो ना, up to date है. Partitions life cycle, leader election. When a partition is first created or when the leader fails, a leader election occurs. The replica with the most up-to-date log becomes the leader. जो सबसे up-to-date है सारी चीजों के साथ, उसको leader बना देंगे. Right to leader. All rights producers for a partition go to the leader. Replication to followers. The leader replicates the messages to followers to keep them in sync. जो भी मैसेज उसके बाद है वो सबको दे देता है फॉलोअर्स को, ताकि वो भी सिंक रहे. रीड फ्रॉम लीडर और फॉलोअर. कंज्यूमर कैन रीड फ्रॉम बोथ द रीडर एंड फॉलोअर्स. रीडिंग फ्रॉम फॉलोअर्स कैन डिस्ट्रीब्यूट द रीड लोड अक्रॉस मल्टीपल ब्रोकर. ठीक है, समझ रहे हो ना? अगर आप फॉलोअर तक रीड करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रीड लोड, तो ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा. Understanding the leader-follower replication model is crucial for designing scalable, fault-tolerant Kafka clusters. It provides durability, availability, and the ability to handle large amount of data and traffic. इसीलिए leader
पार्टीशंस, कंट्रोलर्स क्या होते हैं, सब कुछ जान लिया आज इस वीडियो में। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, ये सब आपको रन करना पड़ेगा। बेसिकली इट्स बेसिकली आपको समझने के लिए कैसे क्या काम चलता है, और इंटरव्यू परस्पेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें पूछी जाती है काफका। बाय द वे, अगर डाटा इंजीनियरिंग की इंटरव्यू देने जा रहे हो तो क्या काफका पूछा जाएगा? डिपेंड करेगा, आपने काफका लिखा होगा तो आप पूछा जाएगा। जनरली अगर बहुत कुछ लिखा होता है डाटा इंजीनियरिंग में तो आई वुड सजेस्ट काफका ना लिखो तब भी चलेगा। आपको पूछे काफका यूज किया है कि नहीं किया है, तो बोल बोल सकते हो कि दूसरे वाला टीम में यूज कर रहे थे, हम लोग यूज नहीं कर रहे थे। बेसिकली हमारा काम था जैसे स्पार्क में काम करना, या फिर स्पार्क के नोड वोड बनाते हैं, या फिर जनरली बोल सकते हो स्कूप काम करना, ये दो चीज। मेनली स्पार्क आना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पार्क जनरली यूज होता है। स्काला स्क्यूकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पार्क बोलना तो स्पार्क में कोई भी एक लैंग्वेज में सीखोगे, फिर सॉरी फ्रेमवर्क में स्काला या फिर पाइस्पार्क, पाइस्पार्क लेकर चलो या फिर स्काला लेकर चलो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछ सकते हो। आर भी कर सकते हो, आर भी ठीक है, कोई भी एक पढ़ लो तो सही रहेगा। स्काला एंड पाइस्पार्क जनरली सिमिलर है, तो प्रेफर किया जाता है पाइस्पार्क फिर स्काला, ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और सीक्वल भी इंपॉर्टेंट है, सीक्वल के बहुत ज्यादा हाई लेवल वाले इंटरव्यूज क्वेश्चन होते हैं, बेसिकली उसकी सीरीज हम लोग अलग से बना रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड कर सकते हो। आजकल अभी अभी आजकल वो एन हैश नंबर या फिर डिलीट डुप्लीकेट रोज फॉर्म सीक्वल, दैट काइंड ऑफ स्टफ अभी भी पूछा नहीं जाता। ये पहले ट्रेंड में था, थोड़ा बहुत ट्रेंड में था। अब सिनेरियो बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवांस लेवल ऑफ सीक्वल आना चाहिए, नहीं तो फिर आप नहीं कर पाओगे यार, आई विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, बिकॉज सीक्वल अभी बहुत ज्यादा हाई लेवल चला गया। ठीक है, तो उसकी चीज हम लोग कवर कर रहे हैं। बेसिक्स, आप कोई पेड कोर्स लोगे तो आपको बेसिक्स समझाएंगे। बेसिक्स आजकल इंटरव्यू में बेसिक नहीं पूछा जाता, अब वो जमाना चला गया कि आप जॉइन पूछे, जॉइन क्या होता है, क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्सेस क्या होते हैं, कई ग्रुप बाय हैविंग में क्या डिफरेंस होता है। पर ग्रुप बाय और हैविंग में क्या डिफरेंस होता है लोग पूछते हैं, पर क्वेश्चन तो बनता है, क्वेश्चन नहीं बनता है। वेयर और हैविंग में डिफरेंस बन सकता है भाई, ग्रुप बाय और हैविंग में तो डिफरेंस बन ही नहीं सकता भाई। ऐसा कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी इंटरव्यूअर्स, बता नहीं सकता यार, लिटरली यार कोई सेंस ही नहीं बनता यार, कोई कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार। वही चीजें, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, अभी तो ये पहले पूछा जाता था, अब बहुत ज्यादा हाई लेवल चला गया, तो हाई लेवल वाले क्वेश्चन हम ही कवर कर रहे हैं हमारे चैनल पे। सीक्वल 50 वाली सीरीज फॉलो कर सकते हो। इंटरव्यू सीरीज फॉर सीक्वल वो अलग से बना के रखा है, उसमें एनहाइस नंबर, डिलीट, डुप्लीकेट रोज, दैट काइंड ऑफ स्टफ कवर किया है, तो वो हो सकता है कोई पूछे। बट अभी ना लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक्स्ट्रा हम लोगों को सीक्वल 50 में मिल रहा है, ठीक है ना। फिर हम लोग हैकर अंत का भी कुछ, हैकर हर्थ, हैकर रैंक के भी कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वल क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो इन शॉर्ट आपको सीक्वल की एडवांस लेवल वाली सीरीज जो इंटरव्यू में जरूरत है, वो हमारे चैनल में मिलेगी, पेड कोर्सेज में आपको नहीं मिलने वाला, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी अगले वीडियो में मिलता हूँ। तो काफका में सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे सर्वर मैं दिखा, मतलब सारी चीजों को स्टार्ट कर दूं, तो मैं जूकीपर को पहले स्टार्ट करूंगा। मैं आई फील लाइक बिन में जाके हम लोग स्टार्ट करते थे जेके सर्वर को, इसको स्टार्ट कर देते हैं। बाकी ये जो सीरीज है ये फ्री में होने वाली है, बाकी आपको मार्केट में पेड भी मिल जाएंगे, और पेड पेड रहता है, बहुत ज्यादा महंगे रहेंगे, 50-60 हजार का, और अप टू डेट नहीं रहेगा, मैक्सिमम अप टू डेट रखते हैं। जेके सर्वर डॉट एस स्टार्ट किया, जूकीपर को मैंने स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हम लोग काफका को स्टार्ट करते हैं। तो काफका को स्टार्ट कर देंगे, मैं होम पे जाऊंगा, लेट मी गो टू काफका, और कॉन्फिग्स में हाँ बिन में विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया। जैसे मैंने कंट्रोलर बोल रहा था, कंट्रोलर क्या है ना, जो सबसे पहले प्रोग्राम रन होगा वो कंट्रोलर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फैसिलिटी भी कंट्रोलर बन, अब होता है क्या है ना, गलती से वो स्टॉप हो गया या फिर कुछ भी हो गया, इन दैट केस वो अब कंट्रोलर नहीं रहेगा, कोई और बन जाएगा। अब एक बार कोई दूसरा कंट्रोलर बन गया, तो पहला वाला जो कंट्रोलर था, जो पहले कंट्रोलर था बाद में फिर हट गया था, पर उसको वो चांस तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो जो करंट कंट्रोलर है वो शट डाउन या फिर बंद ना हो जाए। तो मैं यहाँ पे जो कीपर पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं चाहूँ तो 2-3 कंट्रोलर स्टार्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 2-3 कंट्रोलर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ओपन एंड टर्मिनल करता हूँ, या इसको मैं थोड़े पे दिखा रहा हूँ कैसे क्या होता है। नहीं, अगर मेरा कुछ ऐसे ब्रोकर बंद हो गया, उसके बाद उसको डिलीट करना पड़ता है डायरेक्टरी को, और पोर्ट भी ब्लॉक हो जाता है, तो पोर्ट को भी सही करना पड़ता है, वो भी चीजें हैं, पोर्ट को भी अनब्लॉक करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे इसको एक रन कर रहा हूँ, ब्रोकर मेरा रन हो जाएगा एक यहाँ पे। मैंने इसको रन कर दिया, ब्रोकर ब्रोकर रन हो रहा है। मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन सा कंट्रोलर है, क्या चीजें हैं भाई, कौन सा ब्रोकर कंट्रोलर है, दैट काइंड ऑफ स्टफ। इफ आई एम इंटरेस्टेड इन, आई कैन see that. So what I'm going to do, let me open the VS Code again. I have one more, I think so, broker. What I did earlier, I feel like I have created
मल्टी वन। तो मेरे पास एक और ब्रोकर पड़ा हुआ है सर्वर वन डॉट प्रॉपर्टीज। लेट मी रन दिस ब्रोकर एज वेल। ठीक है, so I'm running a two brokers. Here I can show you which one become the controller. वैसे यार मैं हिंदी में बात करना चाहिए, बीच में इंग्लिश में क्यों बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो। ये यार देखो यार, मैं बीच में अगर इंग्लिश में बात करूंगा ना, जनरेटेड जो होता है ना हमारा वो कैप्शन ऑटो जनरेटेड यूट्यूब पे, वो होता है हिंदी में, तभी मैं डालूंगा। बीच में इंग्लिश बोल रहा हूँ तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, हिंदी में करें इंग्लिश में करें क्या करें। तो सर्वर 100 प्रॉपर्टीज को भी मैंने स्टार्ट कर दिया, दो मैंने स्टार्ट कर दिया ब्रोकर। अब भाई देखिए, हम प्रोड्यूसर नहीं करेंगे, अभी प्रोड्यूसर को सर्वर रखते हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अब देखेंगे कौन सा कंट्रोलर बना है। ब्रोकर वन बनेगा क्योंकि ब्रोकर वन ऑलरेडी रन कर रहा था। अगर अकेला कोई है तो वो तो कंट्रोलर वही बन जाएगा, ठीक है ना। मेरे पास क्या कमांड है, मैं अगर नीचे आऊं, मैं कमांड लिखता हूं सबसे पहले। और एक तो यार यहाँ पे ये, एक मिनट रुको, क्या कमांड है, ./bin। मैं बिन फोल्डर के बाहर हूं तो इसमें मैं बिन लिख रहा हूँ। जू काम करते हैं, देखो यार मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, इस तरह से ही रहेगा इंस्टेड ऑफ जस्ट कॉपी पेस्टिंग। टाइपिंग टाइपिंग हो सकता है थोड़ा दिक्कत। मेरे पास जू कीपर सर्वर डॉट एस एच है, जू कीपर शेल डॉट एस एच है। रीनेम करूँ, इसको यहाँ पे डालता हूँ जू कीपर शेल डॉट एस एच है। उसके बाद लोकल होस्ट जो हमारा यहाँ पे है, ये वो कौन सा लोकल होस्ट में रन हो रहा है, 2181। तो लोकल होस्ट 2181 पे ही ये रन होता है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी रन दिस। मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं बिन के बाहर में जाता हूँ, मैं इसको ओपन टर्मिनल करता हूँ, लेट मी रन दिस एज वेल। अगर आप बिन के अंदर है तो आपको बिन स्लैश डालना पड़ेगा, आपको सिर्फ पाथ डालना है, कौन से पाथ से आप हो वहां से आपको डालना है। वापस जाने के लिए डॉट स्लैश स्लैश दो बार डॉट डालोगे और स्लैश करोगे तो वापस चले जाओगे वापस पिछला डायरेक्टरी में। तो मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, लेट मी सी। इसमें जूकीपर वॉचर इसमें यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको एलएस में देखो, यहाँ पे एडमिन है, ब्रोकर्स है, तो मेरे पास एलएस कर दूंगा स्लैश ब्रोकर स्लैश आईडी, ये होगा। बस दो पड़ा हुआ है, 0 और 1। इसका मतलब मैंने दो ब्रोकर रन हुआ, आपको देखा तो मैंने दो दिखाया था, आपने 0 रन किया था, मैंने 1 रन किया था। यहाँ पे इस तरह से ही होगा। अब मैं कंट्रोलर में ही देख सकता हूँ कौन सा कंट्रोलर है मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कंट्रोलर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे ब्रोकर आईडीज यहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर मैं गेट कंट्रोलर करूँ डैश करके, मुझे कंट्रोलर्स का नाम यहाँ पे कंट्रोलर लिख के आ रहा है। तो मेरे पास देखो यार बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, कंट्रोलर फीचर जूकी पर सब कुछ देख सकते। मैं कंट्रोलर 2 कर रहा हूँ और मेरा ब्रोकर आईडी 0 है। क्यों मेरा ब्रोकर आईडी 0 कंट्रोलर है, आपको पता है क्यों? रीजन इसका सिंपल है, सिंपल रीजन है क्योंकि मैंने ब्रोकर 0 को पहले रन किया था, इसलिए वो ही पहले बन गया और चॉइस वॉइस नहीं था, वही था, वो लक बाय चांस बन गया। अब इसके बाद मैं इस ब्रोकर को बंद करता हूँ। गाइस यार देखो, मैं इस 0 ब्रोकर को बंद करूंगा, फिर मैं, अब कौन होगा, एक बचेगा तो ऑब्वियसली ये होगा। अब मैंने किसी ब्रोकर को मैंने बंद कर दिया, तो उसके बाद मुझे उसके लॉक्स को रिमूव करना पड़ता है और उसका पोर्ट को भी अनब्लॉक करना पड़ता है। अगर मैं ऊपर जाऊं, ये मेरे ख्याल से मैंने ये इधर देखूं, ये मैंने 0 वाला ब्रोकर है। अभी मैं इसको देखूं, मैं 0 वाले ब्रोकर को क्यों बंद कर रहा हूँ, 1 को बंद करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि 1 ब्रोकर कभी था ही नहीं। यहाँ पे देखोगे सर्वर डॉट, यहाँ पे आऊंगा मैं, सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज, तो ये 0 ब्रोकर है। अगर मैं इसको यहाँ पे आऊं बंद करने के लिए, मैंने इसको यहाँ पे बंद कर दिया, मेरा 0 ब्रोकर अभी बंद हो गया। अब ये जब बंद हो गया तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इसके में, अब मैं फिर से एलएस ब्रोकर करता हूँ, थोड़ा टाइम लेगा करने के लिए। ब्रोकर्स स्लैश आईडीज, यहाँ पे एक ही ब्रोकर पड़ा हुआ है। अगर मैं अभी कंट्रोलर करूं गेट कंट्रोलर, अब देखना ये बंदा कंट्रोलर बन गया है, वो वाला हट गया। वर्जन 2 ब्रोकर आईडी 1 कंट्रोलर हो गया। इसके बाद पावर आ गई, ये वो चला गया क्योंकि बाई चांस बंद हो गया। अब ये जो बंद हो गया था, इसके बाद मुझे कुछ चीजें करनी पड़ेंगी इसको फिर से पोर्ट को स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज अब वो पोर्ट ब्लॉक हो गया। वो चला तो गया पर वो अपना छाप छोड़ गया, या फिर को बोलो उसके आत्मा है, कोई भी है जो कुछ भी बोल सकते हो, वो वहां पे बैठा हुआ है। वो चला तो गया, शरीर तो चला गया उसका, पर आत्मा बैठा हुआ है। तो उसको अनब्लॉक करना है, मुझे उसका पोर्ट हटाना पड़ेगा, मुझे उसके लॉग्स हटाने पड़ेंगे जो ब्रोकर बंद हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जाओगे, माय फाइल्स में जाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे होम पे हैव सम टीएमपी। टीएमपी के बाद मैं अगर देखूंगा यहाँ पे, मैं काफका लॉग्स यहाँ पे पढ़ा नहीं है भाई, काफका लॉग्स पढ़ा ही नहीं है। डैम, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, वहां पे नहीं दिखा रहा है, ठीक है। ओके ओके, लेट मी एक और नया ओपन करते हैं, जू कीपर सॉरी टर्मिनल। तो इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, टाइम देख लेता हूँ 5:02। ठीक है, नो इश्यूज, मैं 6 बजे तक मुझे काम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एलएस नहीं cd/emp, अब मैं एलएस करूँ
तो ऐसे मेरा काफका लॉग्स नाम का एक फोल्डर पड़ा हुआ है, वो दिखा नहीं रहा है। तो काफका लॉग्स के अंदर मुझे इस काफका लॉग्स को डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं सी डी दो डैश वापस जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे चला जाऊंगा फिर से। तो मुझे काफका लॉग्स को डिलीट करना है। मुझे काफका लॉग्स को ही क्यों डिलीट करना है, क्योंकि काफका लॉग्स ब्रोकर 0 का था, इसलिए मैं काफका लॉग्स को डिलीट कर रहा हूँ, और कोई रीजन है नहीं। जो ब्रोकर गया है उसका लॉग्स को डिलीट करना है, उसको डायरेक्टली डिलीट करना है। सिंपल क्या है, rm -rf स्लैश tmp फोल्डर का नाम, स्लैश rf tmp फोल्डर का नाम स्लैश काफका क्योंकि काफका लॉग्स फोल्डर का नाम था rm -rf। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मेरे ख्याल से अब करते हैं। हाँ, तो अब मैं इसके अगर सी डी स्लैश टीएमपी करूं, एलएस करूं, आपका लॉक्स में डिलीट हो गया। तो गाइस हुआ क्या था, मैंने यहाँ पे एक मिनट, मैंने जो यहाँ पे आरएफ के बाद स्पेस डालना भूल गया था। थोड़ा मैं कभी कभी भूल जाते हैं, तो वही चीज है, याद रखिए यहाँ पे डिलीट कर दिया। मैंने इसको डिलीट तो कर दिया, बट द ओनली थिंग इज यार आई हैव टू अनब्लॉक द पोर्ट एज वेल, सो लेट मी अनब्लॉक द पोर्ट, बिकॉज ये तो चीज जरूरत है। अच्छा भाई देखो कौन सा पोर्ट था यार, किसी को याद है? आई डोंट नो, मुझे मेरा पोर्ट या नंबर याद नहीं है। तो गाइस पोर्ट नंबर कहाँ से देखेंगे? 9091, आई फील लाइक 9091 पोर्ट होता है यार, पता नहीं 9092 होता है पोर्ट। ब्रोकर वन का पोर्ट कौन सा होता है? हाँ पोर्ट नंबर, अच्छा आईपी एड्रेस सेम रहता है, 9092 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, अपना पोर्ट का 9092 ठीक है। sudo fuser -k 9092 /tcp। तो मुझे पता है ये एफ यूजर हमारा वो होगा हमारे यूजर का नाम, ठीक है। तो लेट मी चेक इट, एफ यूजर होगा कि बाय डिफॉल्ट एफ यूजर होता है। अरे क्लियर करता हूँ मैं, ओके मैं पेस्ट करता हूँ sudo, ओके यहाँ पे मैंने इसको ब्लॉक हटा दिया, एफ यूजर ही होगा मेरे ख्याल से। ओके लेट मी सी इट्स वंस, ये मेरा बंद हो गया था ना। अब मैं इसको यहाँ पे अगर रन करूँ, अब रन होना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ दिखाया है इसका मतलब मैंने कुछ गड़बड़ किया है। रन करता हूँ इसको, कंट्रोल से ही करते हैं, स्लैश ब्रोकर्स स्लैश आईडीज 2 और 0 1, इसका मतलब सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एफ यूजर ही होगा। यहाँ पे एफ यूजर टाइप करते हैं, एफ sudo एफ यूजर -k स्पेस 9092 स्पेस स्लैश टीसीपी। मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ यार, मैंने बार बार जीप कट जा रहा है, मेरा दांत से लग जा रहा है। So I was saying this was कंट्रोलर का थोड़ा बहुत दिखा दिया यहाँ पे। यार बहुत रोशनी नहीं आ रही, अब देखो यार रोशनी सही आ रही है। ठीक है वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो एंड कर देते हैं। ये वाले काफा में कुछ वीडियोस और पेंडिंग है, कुछ काफा का दिखाना है। काफा खत्म करने के बाद वी आर गोइंग टू कवर हाईवे एंड एचपीएस कवर कर लेंगे। बाकी उसके बाद और भी चीजें, एयरफ्लो भी बाकी है, वो करने वाले हैं। सिक्वल की अलग सीरीज बन रही है, जो कि आपको पेड कोर्स में नहीं मिलेगा, पर हम लोग दे रहे हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस वो भी नहीं मिलेगा सिक्वल का, सिक्वल 50 भी नहीं मिलेगी, और डीएसए भी नहीं मिलने वाला, डीएसए की अलग सीरीज चलिए वो भी चेकआउट कर सकते हो। क्लाउड तो मिलेगा ही नहीं, भूल जाओ 50,000 में। क्लाउड का अलग से 1 लाख का कोर्स होता है, हम क्लाउड भी कवर कर रहे हैं। एज्योर ऑलरेडी कवर किया, एज्योर के सब कुछ। सिनैप तो पेड में भी नहीं मिलता, अलग से क्लाउड भी लोगो तब भी नहीं मिलेगा। हम लोग सिनैप भी दे रहे हैं, डाटा फैक्ट्री दे रहे हैं। डाटा फैक्ट्री की अलग से एक इंटरव्यू सीरीज भी आने वाली है, बहुत रियल टाइम सिनेरियोस, वो भी कवर करेंगे, ठीक है। डाटाब्रिक्स पढ़ा रहे हैं, पाइस्पार्क और स्काला की सीरीज अलग से, जो बेसिक चीजें होती हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो भी ऑलरेडी शूट कर लिया है, उसके भी लाइव कर दूंगा धीरे धीरे मैं। और उसके बाद यहाँ पे एडब्ल्यूएस का काम करेंगे, अलग से एडब्ल्यूएस के स्टार्ट करेंगे डाटा इंजीनियरिंग वाली सीरीज, जैसे अभी बेसिक डाटा इंजीनियरिंग किया, एडब्ल्यूएस के भी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। तो एडब्ल्यूएस के लिए आपको जब पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडब्ल्यूएस का अकाउंट बनाना पड़ेगा, फ्री अकाउंट बना लो, थोड़ा बहुत काम चला करके कर देंगे। एडब्ल्यूएस का भी दिखाऊंगा मैं आपको। उसका जीसीपी पेंडिंग रहेगा, जीसीपी दिखा दूंगा। ये 3 मेजर क्लाउड प्रोवाइडर है, तो इसका किस तरह से क्या चीजें रिसोर्सेज होते हैं, सब कुछ होते हैं, सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। बाकी वीडियो को एंड करते हैं, अच्छा लगा तो एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। इस तरह के वीडियो हमारे चैनल पे फ्री मिलते हैं, बाकी जगह पे आपको पैसा देना पड़ता है, 1 लाख 2 लाख जितना आप देना चाहें उस आपको ले लेते हैं, और उसको अपडेट भी नहीं करते। मैक्सिमम जगह पे आपको कोड को अपडेट नहीं किया जाता है, पुराना वर्जन चल रहा है, एयरफ्लो का पुराना वर्जन तो पुराना वर्जन चल रहा है, स्काला का पुराना वर्जन तो पुराना वर्जन चल रहा है। तो वो सब चीजें हम लोग नहीं करते, हम लोग अप टू डेट रखते हैं। बाकी हम लोग एसपीआई कोड डेवलपमेंट की सीरीज कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा वहां पे। एंगुलर रिएक्ट, दिस आर द 2 सीरीज दैट आई एम थिंकिंग ऑफ टू कंटिन्यू फर्स्ट, then after completing this data engineering series, and then I will be focusing on Python and Lingua. This will be completed. Once these two are completed, then I will be pending with ASP.NET Core Ledger-based series. That there we are creating a hotel management system. So that's my point. That once we are done with this, then only that series I want to complete it as far as possible. But only thing is, after the data engineering, I will be focusing on first of all Angular and React.
First that is being completed, then I'm going to focus on Python and LinkU because it has been pending for a long time. Like last year I started, but I didn't completed these series, but I will complete that. Side by side, DSA and SQL will also we are going to cover side by side something or the other. We are going to cover Visa. We were covering Visa series and we will be covering that as well. So then, bye and take care. बाकी अगले वीडियो मिलता हूँ.